Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC NET Paper 2 English. We have done a lot of movements, a lot of group of poets, and in that session, in that continuation, today we are going to learn about the Pre-Raphaelite Brotherhood or the Pre-Raphaelite group of poets. Who were they? What were their motto? What influenced them to start this particular movement and everything. So without any delay, let us start our today's class. Multiple times questions have been asked from here, so you need to cover all the points mentioned in the PPT here. So the pre-Raphaelite brotherhood as we call them, ये नाम इन्होंने क्यों रखा? The first question that we need to answer here is pre-Raphael. Raphael was a painter. Raphael was a painter, and before that they are talking about the writers before the Raphael. ये बोलते हैं कि रफायल और माइकल एंजेलो जैसे जो पेंटर्स हैं, ये जो पेंटर्स इन्फ्लुएंस देते हैं सोसाइटी में, ये उसको रिजेक्ट करते हैं, इसीलिए ये अपना नाम रखे प्री रैफेलाइट, दैट इज द टाइम बिफोर द एज ऑफ रफायल, उनके पहले का. So they were basically a loosely connected group of poets, painters and critics, and this group was founded in 1848, and they were a loosely connected group of 7 members in total. इसीलिए इनका नाम ब्रदरहुड भी बोला जाता है. So at the beginning they were just a loose associated group. ये इनका कोई वैसा पर्पस नहीं था, बट स्लोली ओवर टाइम दे डेवलप्ड अ पर्पस एंड दे एम्ड टू रिवाइव द डिटेल, सिंसियरिटी एंड रियलिज्म ऑफ द आर्ट बिफोर द हाई रेनेसां मास्टर रफाएल एंड माइकल एंजेलो एज वेल. तो ये चाहते हैं कि इनके पहले, इनका पॉइंट ये है कि रफाएल के पहले के हाई रेनेसां आर्ट है जो हमारा, उसके पहले का जो टाइम है उसमें जो पेंटिंग्स में हमें सिंसियरिटी देखने को मिलती है, रियलिज्म देखने को मिलता है, वही चीज पोएम में भी हमें देखने को मिलता है. वो सारी चीजों को ये रिवाइव करना चाहते हैं. दैट इज व्हाई दे रिजेक्टेड द academic teachings of the Royal Academy, which they saw as artificial and overly idealized. That was the purpose of them. Who were the founding members? Who were the members of the society? Dante Gabriel Rossetti. दांते गैब्रियल रॉसिटी के वर्क्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. दांते गैब्रियल रॉसिटी के आप जब पोइट्रीज पढ़ोगे तो उस वाले पर्टिकुलर यूनिट में आपको इनके वर्क्स भी देखने को मिलते हैं. बट ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी. ही वॉज अ पेंटर, अ पोएट एंड अ सेंट्रल figure for blending the art and literature. Next member that we have is William Holman Hunt. He was a painter known for his intense realism and religious symbolism in his paintings. John Everett Milius. He was also a painter and he was the youngest member. James Collinson. Next is Frederick George Stephens. Thomas Woolner and William Michael Rossetti. All these were the members of the society, of this particular group of poets. यहाँ से आपको ये याद रखना है. सो बेसिकली ये जो ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं, दे sought to return to the abundant detail, the intense colors and the complex composition of the Italian art. ये इटालियन आर्ट में जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता था, इंटेंस कलर्स का यूज देखने को मिलता था, ये वहां से इंस्पायर होते. Thus they rejected what they regarded as the mechanistic approach first adopted by the mannerist artists who succeeded like Raphael and Michelangelo. ये माइकल एंजेलो और रफाएल जैसे राइटर्स को बोलते हैं कि ये मैनरिस्ट आर्टिस्ट है और ये जो आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, दे हैव अ वेरी मैकेनिस्टिक अप्रोच. तो ये उसको रिजेक्ट करते हैं. दैट इज व्हाई the Brotherhood believed the classical poses and elegant compositions of Raphael in particular and had been a corrupting influence on the academic teaching of art. ये बोलते हैं कि रफाएल के जो
एलिगेंट कंपोजिशंस है, क्लासिकल पोजेस है, वो एक तरह से करप्टिंग इन्फ्लुएंस है आपका एकेडमिक टीचिंग के लिए, इसीलिए ये रफाइल के पहले की एज की बात करते हैं। सो इनका ये बिलीव क्या करते थे, दे बिलीव रिटर्न टू नेचर एंड रियलिज्म, ये इनका मोटो था। दे एम्फेसिस ऑन ऑब्जर्वेशन, ट्रुथ टू नेचर एंड फाइन डिटेल्स इन पोइट पेंटिंग्स। Medieval and biblical themes inspired by chivalry, legends, myths and religious stories। पहले ये पेंटर्स एक ग्रुप बनाते, इसी से इंस्पायर होकर फिर हमारे पास पोइट्रीज आती हैं, तो ये बेसिकली पेंटिंग टू पोइट्री की जर्नी है। स्पिरिचुअल सिंबलिज्म, दे यूज्ड टू फोकस ऑन इनर मॉरल और सिंबॉलिक मीनिंग। रिजेक्शन ऑफ एकेडमिक आर्ट, क्लासिकल पोजेस, रफाइल वाले जो है वो सारी चीज़ों को ये रिजेक्ट करते। हैंडक्राफ्टेड एस्थेटिक्स, इन्फ्लुएंस ऑन गॉथिक रिवाइवल एंड हैंडक्राफ्ट डिजाइंस, ये गॉथिक स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हैं। की आर्टवर्क्स एंड पेंटिंग्स, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, लाइक द अवेकनिंग कॉन्शियस, दिस इज द पेंटिंग बाय हॉलमैन हंट। A moral scene of a woman realizing the sin of her situation, this is what the painting is about। The Light of the World by Holman Hunt, जिसमें आपको सिंबॉलिक क्रिश्चियन पेंटिंग जीसस नॉकिंग ऑन अ डोर ऑफ द ह्यूमन सोल ये देखने को मिलेगा। दीज आर सम क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ द आर्टवर्क्स। अगर इनकी पोइट्री की बात करें, जब ये पोइट्री में स्टाइल को लाते हैं, तो हमारे पास डीजे रॉसिटी का वर्क आता है, द ब्लेस्ड डेमोजल, जेनी, द ब्लेंड ऑफ, जिसमें आपको द ब्लेंड ऑफ सेंशुअल और स्पिरिचुअल थीम देखने को मिलेगा। जेनी इज द कैरेक्टर देयर। क्रिश्चियना रॉसिटी का गॉबलिन मार्केट, जिसमें आपको मॉरल, स्पिरिचुअल और फेमिनिस्ट अंडरटोन्स देखने को मिलेगा। विलियम मॉरिस का द डिफेंस ऑफ यूनिवर्सल, मेडिवलिज्म, शिवलरी, एस्थेटिक्स जैसे वर्क्स मिलेंगे इसमें। इनका लिटरेचर पे और आर्ट में क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, दे हेल्प्ड इन शेपिंग द विक्टोरियन पोइट्री एंड विजुअल सिंबलिज्म। दे इंस्पायर्ड लेटर आर्टिस्ट लाइक एडवर्ड बर्न जोन्स एंड जॉन विलियम वाटरहाउस। They influenced arts and craft movement, which was led by William Morris as well, and they helped to define the aestheticism and art for art's sake in the late 19th century। इन पे क्रिटिसिज्म भी प्रोवाइड किया गया। दे वर अक्यूज्ड ऑफ एक्सेसिव रोमांटिसिज्म इन देयर वर्क्स, ओवर सेंटिमेंटैलिटी एंड डेकेडेंस, एंड दे ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय विक्टोरियन क्रिटिक्स फॉर ब्लेंडिंग सेंसुअलिटी एंड रिलीजन। इनकी लेगेसी की बात करें तो इन्होंने पेंटिंग में काफ़ी काम किया है, लाइक दे रिवाइव्ड मेडिवल डिटेल, सिंबलिज्म, विजुअल स्टोरी टेलिंग। पोइट्री में फ्यूजन ऑफ इमेजेस एंड टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। लव जैसे थीम्स ही एक्सप्लोर करते हैं, डेथ एंड डिज़ायर जैसे टॉपिक्स मिलते हैं। डिज़ाइन की बात करें तो अगर पेंटिंग और पोइट्री में, तो दे डिज़ाइन द हैंडक्राफ्ट, हैंडमेड आर्ट, स्टेन्ड ग्लास, बुक डिज़ाइन एंड इंटीरियर डेकोर। थॉट की बात करें तो ये एक ब्रिज बनाते हैं बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म, एंड दे हेल्प रिवैल्यू द मिथ एंड सिंबलिज्म इन आर्ट। सो बेसिकली the Pre-Raphaelite Brotherhood rebelled against the stale norms of academic art and literature, choosing instead of blend spiritual depth, mythic imagination and natural realism. They laid the groundwork for symbolism, aestheticism and even early modernist thought, leaving a lasting impact on both visual and literary arts। Basically, इनका मोटो रहता है towards a more real art work, that is what they are saying। So Pre-Raphaelite Brotherhood में कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके मिलते हैं ज़्यादातर, या ग्रुप ऑफ पोएट्स आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना रहता है। इसमें आपको बाद में दांते गैब्रियल रॉसिटी की सिस्टर क्रिश्चियना रॉसिटी भी आपको इसकी मेंबर देखने को मिलेंगी। एंड कुछ जो पॉइंट्स आपको याद रखने का ज़रूरत है, दैट इज़ कि प्री राफेलाइट मूवमेंट एक कल्चरल मूवमेंट था that sought to reform the aesthetic values and principles of the Victorian era, and the group rebelled against the popularity of Raphael and inspired to turn back to the history, that is age before the Raphael। I hope that my points are clear to you all। Okay,
Now I would like to end the session. Subscribe to my channel, share the video as much as you can to increase the reach. जिनको ये videos helpful रहेंगे उनके पास भी ये पहुंचना चाहिए. Okay. Have a lovely day, learners.